Hello बच्चों, today we will study about the meiosis. Now what is meiosis? Actually meiosis is a type of cell division in which one diploid mother cell. It is a type of cell division in which one diploid mother cell give rise to 4 haploid daughter cells. 4 haploid daughter cells are formed. Okay. So these are the 4 daughter cells which are haploid in nature. Haploid का मीनिंग होता है having only single set of chromosome और diploid का मीनिंग होता है having 2 set of chromosome. But this is not a single step process. Meiosis involves main 2 steps. So that is we can say the meiosis can be categorized into 2 main processes. One is the meiosis 1. Meiosis 1 is also known as reductional division. What it is called as? Reductional division. Okay. And meiosis 2. This is the meiosis 1. And second is the meiosis 2. Meiosis 2 जो होता है बेटा, that is called as equational division. तो वी कैन जस्ट शो इट बाय डायग्रामेटिकली. अगर हम लोग इसको शो करते हैं तो हाउ वी कैन शो? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डिप्लॉयड सेल. इट इज अ मदर सेल. इट अंडरगोज मियोसिस 1. इसमें क्या हुआ बेटा? मियोसिस 1. और जब मियोसिस 1 होता है तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज कौन सा है बच्चा? रिडक्शनल फेज. तो दिस इज ऑल्सो द रिडक्शनल डिवीजन. कहीं पे भी वर्ड रिडक्शनल का मीनिंग होता है रिड्यूस हो जाना यानी कम हो जाना. तो यहाँ पे भी जो डिप्लॉयड है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हैप्लॉयड में, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. तो द मियोसिस 1 का जो रिजल्ट होता है दैट इज 2 सेल्स आर फॉर्म्ड and each cell is having the half number of chromosome from the previous one. Previously उसके पास 2n number of chromosome है, अब कितने रह गए बेटा? n number of chromosome. Now ये complete नहीं हुआ कि meiosis complete हो गया. अब इसमें second division start होगा and that second division is called as meiosis 2. meiosis 2 occur in both these cells. दोनों ही cells में meiosis 2 होंगे बेटा. And you know that meiosis 2 जो है that is called as equational division. तो this is the equational division. equational का मीनिंग होता है equal. मीन्स अब जितने क्रोमोसोम हैं इन सेल्स में उतने ही नंबर इनके अंदर रहेंगे. तो अल्टीमेटली this cell will divide into 2 and this cell will also divide into 2 and as a result it produces 4 cells. And these are the 4 haploid daughter cells. Okay, these are the 4 haploid daughter cells are formed by the process of meiosis. तो meiosis हम लोगों को एक चीज़ पता चल गया है कि meiosis में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. अब मेनली हम ये कहेंगे कि why it occur, क्यों होता है बेटा? तो यूजुअली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए मियोसिस होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. ओके, आपको एक सिंपल सा प्रोसेस है बेटा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू ऑल नो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मैं यहाँ पे एक बार स्टेप्स बता देती हूँ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेन स्टेप्स होते हैं. ओके, तो दो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मियोसिस बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हाउ मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. तो सिंपली मैं यहाँ पे लेती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा उसमें 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज गैमेट फॉर्मेशन. and second step is called as fertilization.
इफ इट इज ये दिस सिंबल इज ऑफ द मेल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द फीमेल. तो दिस इज द मेल इंडिविजुअल एंड दिस इज द फीमेल इंडिविजुअल. नाउ व्हाट हैपन? Suppose the male is having, we are taking the example of the human being. So human being are having the 46 number of chromosome. Female is also having the 46 number of chromosome. So first step is the gamete formation. So when male will produce gamete, sperm form होते हैं बेटा, और इन sperm में जब gamete formation होगा तो इधर होंगे बेटा meiosis. meiosis हुआ तो sperm में only 23 chromosomes will come, and in the same way in the male, in the female, when gamete formation will there, ova will form, and ova is also containing 23 number of chromosome. This is the first step, that is called as gamete formation. और gamete formation के दौरान क्या हुआ बेटा? meiosis. Now second step जो हमने बोला है फर्टिलाइजेशन का, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज फर्टिलाइजेशन. एंड फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो नाउ दिस मेल एंड फीमेल गैमेट गेट फ्यूज टू फॉर्म अ zygote. 23 chromosomes comes from the sperm, 23 chromosomes comes from the ova, and ultimately form 46 number of chromosome. The parents are also having 46, and the offspring is zygote is also having the 46 number of chromosome. So to maintain the number of chromosome, suppose अब आप एक चीज़ ये मान के चलो कि अगर मियोसिस नहीं होता, अगर मियोसिस टाइप की सेल डिवीज़न होती ही नहीं है ना, तो मैं ये सेकंड कंडीशन मानती हूँ. इफ मियोसिस was not there, नहीं होता था तो क्या होता बेटा? 46 मेल में 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम फीमेल में. मियोसिस नहीं होता और माइटोसिस होता तो स्पर्म में भी 46 क्रोमोसोम आते, एग में भी 46 क्रोमोसोम आते, और दोनों फ्यूज़ होके जो जाइगोट बनता उसके अंदर 92 क्रोमोसोम आ जाते. तो बेटा फिर तो पॉसिबल ही नहीं था ह्यूमन स्पीशीज़ का या किसी भी स्पीशीज़ को अपने कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन करने का. सो दिस प्रोसेस डज नॉट अकर. क्यों? क्योंकि मियोसिस होता है. तो मियोसिस इज द प्रोसेस इन विच द क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इट फॉर्म? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म. नाउ वी स्टार्ट द मियोसिस. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा मियोसिस. तो आई जस्ट कैन से कि मियोसिस जो है इट इन्वॉल्व सिंपली इट इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहा है. तो इट इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल. 2 सीक्वेंशियल साइकिल चलती है बेटा. किस किस की सीक्वेंशियल साइकिल चलती है? इट इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ, फर्स्ट इज न्यूक्लियर डिवीज़न, जिसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, और सेकंड इज द साइटोप्लाज्म डिवीज़न, या जिसको हम कह देते हैं सेल डिवीज़न. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज meiosis 1 and meiosis 2 that we had already studied. कि meiosis 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीज़न है, एंड meiosis 2 है इज इक्वेशनल डिवीज़न. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल जस्ट कम ऑन टू द meiosis 1. नाउ meiosis 1 जो है बेटा, हम ये कह देते हैं कि ये कब स्टार्ट होती है? व्हेन द meiosis 1 स्टार्ट. तो meiosis 1 starts after the parental chromosomes replicate. ठीक है, to produce
आइडेंटिकल sister chromatids during S phase. Now ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा इन द माइटोसिस कि माइटोसिस से पहले या किसी भी सेल डिवीज़न से पहले जो स्टेजेस आती है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरफेस. इसको दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन यू, बट इसको मैं सिंपली दोज हु आर जस्ट वॉचिंग इट फर्स्ट टाइम उनको पता होना चाहिए कि इंटरफेस में क्या होता है बेटा. इंटरफेस जो होता है दैट इज़ वी कैन से कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज एंड मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल. ये सेल जब हम माइटोसिस करते हैं उस टाइम में करते हैं. तो सिंपली इंटरफेस के अंदर आता है G1 फेज जिसको कहते हैं गैप 1 फेज, S फेज that is called as synthesis phase and G2 phase that is called as gap 2 phase. Now gap 1 phase में usually protein synthesis होता है बेटा, और वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल. ठीक है, सेल की ग्रोथ के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है. द प्रोटीन सिंथेसिस विच इज़ असेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द DNA. रेप्लिकेशन ऑफ DNA मतलब कि देयर इज़ अ कॉपिंग ऑफ DNA की कॉपिंग के लिए. एस फेज में एस फेज इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA का रेप्लिकेशन होता है. और G2 फेज इज़ अगेन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. अब यू स्टूडेंट्स कैन आस्क कि मैम इधर भी प्रोटीन सिंथेसिस इधर भी प्रोटीन सिंथेसिस, तो how these two gap phases are different from each other? I told you in the G1 phase the protein is synthesized which is essential for the replication of DNA, while in the G2 phase the protein will synthesize which is essential for the cell division. जो M phase के लिए responsible protein होता है जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है for the formation of the spindle fiber, तो वो protein synthesis होती है. तो now you can understand. अब आपको समझ में आया होगा बेटा कि मैंने यहाँ पे बताया मियोसिस 1 स्टार्ट्स आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम. पेरेंटल क्रोमोसोम यानी कि दोज क्रोमोसोम विच आर ऑफ द डॉटर सेल मदर सेल. तो पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट मीन्स कॉपिंग ऑफ DNA टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग द S फेज. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, ये हो गया बेटा S फेज में. अब मियोसिस के अंदर सिंपली आता है कि हम इसको देखेंगे कि मियोसिस में कितने फेजेस हैं. तो मियोसिस 1 हैज़ 4 फेजेस. 4 फेज है बेटा. 1 इज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फर्स्ट, सेकेंड, third and fourth is the telophase. Now in each condition I will just put prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, because in the meiosis 2 also these 4 phases are present. तो उसलिए हम कंफ्यूज नहीं हो कि ये मियोसिस 1 के हैं या मियोसिस 2 के हैं. हम लोग प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 ये कहेंगे बेटा. अब सिंपल चीज़ आती है कि मियोसिस 1 मियोसिस 1 में फर्स्ट आई विल टेक प्रोफेज 1. नाउ प्रोफेज 1 जो है बेटा हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ द मियोसिस 1. तो फर्स्ट पॉइंट में इसका लिख सकती हूँ, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ meiosis 1. Okay, now it involve further steps. इसके अंदर फर्दर इनके सब डिवाइडेड होते हैं.
तो इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द 5 फेजेस। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। अब ये सब डिवाइडेड है 5 फेजेस में, तो हम ये देखते हैं कौन कौन से 5 फेजेस हैं। तो द फर्स्ट फेज इज द लेप्टोटीन। Okay, what it is? Leptotene. Second is zygotine. Okay, what it is? Zygotine. Third is fecitine. Fecitine. Fourth, diplotene. And fifth is the dikinesis. Okay, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसको सिंपली याद रखने के लिए इन द सीक्वेंस मैंने एक वर्ड बनाया है जिसके अनुसार हम लोग इसे लर्न कर सकते हैं। उसको हम सिंपली ले लो जी, फिर डबल धमाका, लो जी फिर डबल धमाका। लो फॉर लेप्टोटीन, जी फॉर जाइगोटीन, फिर फॉर फेकाइटिन, पी फॉर फेकाइटिन, डबल डिप्लोटीन एंड धमाका इज़ फॉर डाइकाइनेसिस। अब आप ये कह सकते हो कि मैम ये भी तो डी से स्टार्ट है और ये भी डी से स्टार्ट है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि पहले डिप्लोटीन है और फिर डाइकाइनेसिस है? तो सिंपली चीज़ आपको याद रखना है, धमाका में के है बेटा और डाइकाइनेसिस में भी के है। तो धमाका लास्ट में आया है तो डाइकाइनेसिस लास्ट में आएगा और ये डबल का डिप्लोटीन आ जाएगा। तो लो जी फिर डबल धमाका। तो बाय दिस वी कैन लर्न द सब phases of the prophase 1. In the next video we will explain each and every phase of this meiosis 1, that is the prophase 1. Thank you.